السلام علیکم. ہم اس وقت اسکردو بلوچستان کے شارہ ایئرپورٹ روڈ پہ یہاں پہ استانہ چنگی ایریا میں یہاں پہ موجود ہے. ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. انہوں نے سردیوں میں گرمیوں میں ان کا کاروبار جو ہے ماربل ٹائل اور پائپ میں لائن کے فٹنگ وغیرہ اور باتھ روم وغیرہ کے ٹائل اور گھروں میں ٹائل لگانے کی ان کی کام ہے. اگر کسی کو ضرورت ہو گھروں میں جو ہے کام کے لیے سینیٹری کے کام ہو, پائپ کی فٹنگ ہو, باتھ روم کی ہو, ٹائل کی کام ہو, یہ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. ان کے علاوہ ان کا ایک چھوٹا سا مشغلہ ہے کہ موٹر بائک ہے ان کو خوبصورت کر کے بنانے کے بعد یہ یا پرافٹ میں کچھ مناسب رقم رکھ کے بیچ دیتے ہیں. اس کے علاوہ آپ نے ابھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک چھوٹا سا کیبن ہے استانہ چنگی میں. یہاں اسکردو کے وسط میں موجود ہے اسکردو میں. تو جو بھی حضرات یہاں پر آنا چاہیں ان کے پاس اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا ایک چھوٹا سا کیبن ہے استانہ چنگی میں. یہاں اسکردو کے وسط میں موجود ہے اسکردو میں. تو جو بھی حضرات یہاں پر آنا چاہیں ان کے پاس چپس ملتا ہے, رول ملتا ہے, سموسے ملتا ہے, چائے ملتا ہے اور بلتستان کی جو ہے نا بلے بھی ملتا ہے. بلے یعنی کہ کارن سوپ ملتا ہے ان کے پاس. آپ بتائیے میرے بھائی, آپ یہ بتائیے کہ چپس کا جو پلیٹ ہے ان کا کیا ریٹ ہے؟ ہمارا عوام دیکھ رہے ہیں آپ کو. جی سر, سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ کہ یہاں آ کے آپ نے ہمارا تھوڑا آگے پروموٹ کیا. یہاں پہ جو ہے نا چپس کا یہ سین ہے کہ ایک پلیٹ 50 کا ہے. جتنا آرڈر آیا اسی کے تحت ہم بنا سکتے ہیں. 50 سے اوپر جتنا بنانے کے 50 کا بھی ہے, 100 کا بھی ہے, 100 کا 120 کا بھی ہے, 150 کا بھی ہے. جتنا آرڈر آیا ہم بنا سکتے ہیں. یعنی کہ میں نے جو کل کھایا چپس ان سے وہ واقعی اسپائسی چپس تھا, بڑا خستہ چپس تھا چائے کے ساتھ. تو واہ کیا بتائے. اور جو بھی یہاں آنا چاہتے ہیں یہ بالکل استانہ ایڈوکیٹ نبی صاحب کا بلڈنگ ہے سامنے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں. یا بالکل اور کوئی بھی آنا چاہے یہاں پہ FSD ہے سامنے آپ, یا شارع ہمارا ایئرپورٹ روڈ ہے. اور جہاں پہ اتوار بازار لگتے تھے, اتوار بازار کو یہاں سے ہٹا کے جو ہے بس اسٹینڈ پہ لے گیا ہے. تو ان دونوں بھائی کو آپ لوگ اس ویڈیو میں پہچان کے رکھے. بہت یعنی کہ میں یہ کہوں گا کہ حرکت میں برکت ہے. کیوں بھائی؟ اور ہم آپ کو اپریشیٹ پیش کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے وقت ضائع نہیں کر رہے, کام کو چھوٹا نہیں سمجھ رہے, کام کو بڑا سمجھ کے آپ کام کر رہے ہیں. یعنی کہ چھوٹے لیول سے آپ جو کام اٹھا رہے ہیں اور دوسروں کو بھی آپ اور جو نوجوان طبقات ہیں بلتستان کے ان کے لیے کیا پیغام دیں گے آپ؟ نوجوان طبقات اپنے آپ کو ضائع نہیں کرنا ہے, کوئی نہ کوئی ہنر سیکھنا ہے, ایسے چیزوں میں نہیں پڑنا اور باقی بس محنت کو جاری رکھنا ہے. محنت کرو گے اسی میں برکت ہے. محنت جو بھی محنت ہو, جو ہنر ہو یا اس کو ضائع نہیں کرنا ہے. اس طرح کی چیزیں سیکھے اور عوام سے. یہ میرا بھائی اسکردو استانہ سے ان کا تعلق ہے. گیل سے کیوں یار؟ گیل سے تعلق ہے یعنی کہ بلتستان کا ہے. یہ دوسرے لوگوں کے لیے, جوانوں کے لیے ایک رول ماڈل ہے. تو کیا کہتے ہیں بھائی آپ دوسرے جوان کے لیے کیا کہیں گے؟ جوانوں کے لیے جو فضول پھرتے ہیں, فضول اپنے وقت کو ضائع کرتے. یہ دیکھیں بھائی صاحب, آپ کیا کہیں گے ان کے لیے جو نوجوان طبقات ہیں جو فضول اپنے وقت ضائع کریں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے یہ لوگ رول ماڈل ہے. ابھی یہ لوگ چھوٹے عمر کے, پھر بھی یہ لوگ اپنا محنت کر کے اپنا ڈیلی کا خرچہ نکالتے ہیں, گھر کی اخراجات پورا کرتے ہیں. بہت اچھا کام کر رہے ہیں, بہت زبردست. یہ دیکھیں جناب, لوگوں کی کمنٹ اچھے کام کے لیے ہمیشہ اچھے کمنٹ آتے ہیں. تو آپ کیا کہیں گے نوجوانوں کے لیے جو اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں, موٹر سائیکل ویلنگ کر رہے ہیں, باپ کی جو جائیداد کو پیسوں کو اڑا رہے ہیں, ان کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ان کے لیے بہرحال یہی درخواست ہے کہ اپنے وقت سے ان کو ضائع نہ کریں, محنت کریں, مزدوری کریں. مزدوری کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے, بالکل اپنا کاروبار کریں. تو مجھے یہ بتائیے محنت کرنے میں کتنا مزہ آتا ہے؟ بس مزے کا تو کوئی حد نہیں ہے. بہرحال برکت تو ہے نا, برکت ہے. محنت کیا یہ پیسہ ختم ہوتا ہی نہیں ہے؟ نہیں, ٹھیک ہے, سب ختم ہی نہیں ہوتا ہے.
जो आरे पूरे साइड से आने वाले पैसों का जो है ना कोई वो नहीं होता है, उसका कोई टाइम नहीं होता है, किसी वक्त भी उड़ जाता है। उड़ जाता है। बरकत वाला रिज़्क जो मेहनत करके कमाता है उसमें बरकत ही बरकत होते हैं और अल्लाह ही बरकत देते हैं। तो तमाम स्कर्दू बल्तिस्तान के नौजवानों के लिए एक पैगाम है, एक मैसेज है, आप लोग इनको फॉलो कीजिए और यहाँ पर आकर ज़रूर इनकी जो है चिप्स को और समोसा और रोल वगैरह इनका जो है ना और भले वगैरह, इनके पास भले भी है, इनके पास कारण सूप है, चाय है, कहवा है, आप जो भी पीना चाहोगे यहाँ पर आपको अवेलेबल है। इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़। मेरे साथ यहाँ पे शहर के माज़ीन और बिलखुसूस हमारे इलाही वेलफेयर के रूह रवा हमारा हाजी जाकिर हुसैन साहब मास्टर पी के बहुत बड़ा नाम है, इलाही वेलफेयर का बहुत बड़ा राइट हैंड बाजू की मानिंद काम कर रहे हैं आप। गरीब गुरबा मुस्तहिक लोगों के लिए आप काम करते हैं। आप यहाँ पे अचानक से आए हैं, एक लफ्ज़ से अचानक, तो एक मनक़बत भी है अचानक वाला, उसकी तरह आप भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमाए। तो आपसे भी कमेंट जानते हैं, हमारे ठेकेदार जनाब क्वार्टू से तलो रहते हैं, हमारा रसूल साहब वो भी यहाँ पर मौजूद है। तो इनसे हम कमेंट जानते हैं कि इस होटल के बारे में, इस ठिए के बारे में, ठेला जो लगा हुआ है हाजी साहब का ठेला लगा और साथ मोची की दुकान है यहाँ पे, तो इनके बारे में जानते हैं आप से। अस्सलाम वालेकुम। जाकिर भाई क्या हाल है जनाब? बड़ी मेहरबानी। बड़े अरसे के बाद मिले हैं आप, तो आज बहुत ही चेहरे पे रौनक है, सजे हुए हैं। सर्दियाँ जनवरी चल रही, लेकिन आपके चेहरे पे जून और जुलाई आया हुआ है, ऐसा लग रहा है कि गुलाब खिले हुए। तो वेलकम, बहुत शुक्रिया। तो इस नौजवानों के बारे में, ये ऐसे छोटे छोटे जो कारोबार करते हैं, जैसे कि वो मोची की दुकान है सामने, वो हाजी साहब है, तो वो हाजी साहब है, ये ठेला ये साजी का है, ये सामने वाला। तो अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ पे इसके बारे में आने वाले जो जनरेशन है, जो लड़के अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनके बारे में, जो अपने माँ बाप के जो इनकम को यानी कि समझते नहीं, कैसे अपने यानी कि हाथ पाँव जला के या उनको अपने घिसा के जो घुमाते हैं, मेहनत करके मजदूरी करके ले आते हैं ट्रैक्टर गाड़ियों में, और वो बच्चे मार्केट में मोटरसाइकिल बाइक पे अवारागर लड़कों के साथ अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं। तो आप इस बारे में क्या एडवाइस देंगे? पहले तो जो आपने जो बात कही कि जून जुलाई वाला जो आया हुआ है आपके चेहरे पे खिला हुआ है, तो उसका ये है वजह कि आपको जो भी आदमी देखता है उसका चेहरा खिलता भी है, वो खुश भी होता है। आपके चेहरे में ही, आपकी शख्सियत में ही कुछ ऐसी वो रखी हुई अल्लाह ने आपको। तो मैंने रसूल भाई, मैंने अहवाल भाई से एक वादा लिया है, वो वादा ये है कि आप जब इस दुनिया से जाओगे हम, तो वादा ये है कि आपने जन्नत में मुझे साथ लेके जाना है, क्योंकि इंशाल्लाह मुझे यकीन है जो काम जो आप सोशल जो आप करते हैं, जो फलाई बहबूद के काम आप करते हैं, तो अल्लाह आपको इंशाल्लाह इसका जज़ा अल्लाह देने वाला है, वो इंशाल्लाह आपको अल्लाह देंगे। तो बाकी इन बच्चों का ये है कि हम सबको भी चाहिए कि जो कमज़ोर ख़ानदान के बच्चे हैं, जो माली कमज़ोर माली हैसियत से जो कमज़ोर है, उनको चाहिए कि जो काबिल हैसियत जो लोग हैं उनको चाहिए इनको उठाए। तो इनको जिस तरह आप कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ जगह पे ठेले लगा के जो आप देते हैं, अल्लाह आपको तफ़क्कुर में और भी इजाफ़ा करे, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। और इस तरह के और भी लोगों को चाहिए कि लोगों को जहाँ पे नज़र आए, कोई अपना जिस हद तक हो सके, जो भी जिससे जो बन सके, उस हिसाब से माशरे के इस्लाह के लिए करना चाहिए। कोई भी अगर जराइम अगर होती है किसी माशरे में, तो उसकी मेन वजह है कि मैशत कमज़ोर होने की वजह से, बेरोज़गारी की वजह से, उसके घर में फाके पड़ने की वजह से जो माशरे में जो जराइम है वो बढ़ती है। तो जिस तरह आप अभी कर रहे हैं कि लोगों से, जहाँ से आपके अपने दोस्तों से, अपने घर से, मैं रसूल भाई आप कदाफी भाई आप दोनों को भी बताता चलूँ कि पिछले मुझे खुद बताया तो नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ कि अहवाल भाई का जो अपना कंपाउंड है, बहुत बड़ा एरिया है हसन कॉलोनी में,
लोगों के घरों में जब लकड़ लेके जा रहे थे, लकड़ कम पड़ गए, तो इसने अपना तकरीबन पूरा शाख तराशी करके पूरा अपने कब्बन में जितने पौधे थे उनके शाख तराशी करके आधा खुद ने रखा, आधा लोगों में तकसीम किया है। जो आपकी इस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं अमन भाई, आपके इस जज्बे को हम सलाम पेश करते हैं, और इंशाल्लाह आपके साथ हम जितना हमसे बन सके, जो हमसे बन सके हम ताउन करते रहेंगे। लेकिन एक बार फिर आपसे वादा लेते जाऊंगा कि आप जब जन्नत में जाओगे हमें साथ लेके जाएंगे, हम कुछ करके जाएंगे, बड़ी मेहरबानी। इन्हें जल्दी नहीं जाएंगे। क्यों भाई? तो बेटा आप पढ़ते हो, आप नौजवान तबकात बच्चों के लिए क्या कहेंगे? जो आप तो पढ़ाई कर रहे हैं, आप तो स्टूडेंट है, जी बिल्कुल। ये इस रेडे के हवाले से, इस ठे के हवाले से जो पढ़ नहीं रहे, जो पढ़ाई से दूर है, उनके लिए क्या पैगाम है? जब लोगों ने पढ़ा नहीं है तो जो बिजनेस चला रहे उसी को शौकीन करके आगे बढ़ाना चाहिए। जब एक बिजनेस भी एक अच्छा वो है प्लेटफॉर्म है लोगों को आगे बढ़ने के लिए। क्या वक्त वापस आता है? वक्त तो वापस नहीं आते बिल्कुल। जब इसने पढ़ाई नहीं किया तो जो ये चला रहे काम उसी को कंटिन्यू रख के आगे जा सकते। क्या एहसास है कि वालिदैन किस तरह घुमाते हैं? जी बिल्कुल। वालिदैन के कभी देखा है वालिदैन के हाथ पे छाले लगे हुए? जी बिल्कुल। हाँ, एहसास है, इसलिए आप पढ़ाई करें, हम आपको शाबाशी देते हैं, आफरीन कहते हैं। कैसा लीजिए भी आपको सादी प्रोग्रामी शख्सियत, आप क्या कहना पसंद करेंगे नौजवान तबकात के लिए जो कि अपने वक्त को ज़ाया कर रहे हैं, ना कि ऐसे रेड़े लगा के, ठेले लगा के शर्माते, आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इकबाल साहब आपका शुक्रिया, आपने मौका फराहम किया। ये हालात का तकाज़ा मैं समझता हूँ। हर इंसान जो है वो अल्लाह ताला ने जब दुनिया में पैदा किया है तो जब से वो होश संभालते हैं उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है। कुछ लोग जो है उनका बैकग्राउंड अल्लाह के फजल से ठीक होता है, वो पढ़ाई में आगे जा सकता है। कुछ लोगों का जो है हालात जो है वो मतलब उस स्टेज पे होता नहीं है, तो उनको बेचारों को जो है वक्त से पहले काम करना पड़ता है। तो खैर इंसान का ये है, कुरान का आयत भी है कि जो इंसान मतलब अल्लाह से मांगेगा वो उसको मिलेगा। तो मेरा ये पैगाम है कि जो भी नौजवान है वो ज़्यादा फोकस अपने पढ़ाई पे करे, अपने लाइन में रहें। मुश्किलात ज़रूर आएंगी, इंशाअल्लाह आप अपने लाइन में रहेंगे तो रेड़ा आप बाद में भी लगा सकते हैं। जैसे कि आपने भी फरमाया, वक्त जो है वो गुजर जाता है तो वापस नहीं आता। तो वक्त की कदर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइन में रह के सबसे पहले जो है तालीम हासिल करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। Rasul Sahib, Mr. Dokpo, Kwade Nushar Bingimo, Irifi Apola, वेलकम यू। यहाँ से आप बच्चों के लिए जो कारोबार नहीं करते, जो अभी सवालात कुछ मैंने कर दिए, उनके लिए आप क्या कहेंगे? मेरा पैगाम बैठे करें, बिल्कुल घर में गरीब वालिदैन है उनके साथ हाथ बटाए। जो हम इस स्टेज पे पहुंचे हैं तो अगर पढ़ सकते हैं तो पढ़ें, ठीक है। नहीं पढ़ते हैं तो वक्त ज़ाया ना करें, अपना कारोबार स्टार्ट करें, चाहे छोटे भी हों। लेकिन यहाँ पे हम हैसियत मुसलमान जो है, हुज़ूर इस्लाम का ईमान भी है कि उतलुबुल इल्म वलो कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन जाना पड़े। लेकिन हम यहाँ पे अपने दिल्ली पाकिस्तान के लोगों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि हम जो है बड़े जाने के लिए छोटे से पहले सीढ़ी को पाँव रखना पड़ता है। लेकिन हमारे लोग जो है वो बड़े बड़े ख्वाब देखते हैं, छोटे छोटे से कारोबार शुरू नहीं करते। तो मेरा मैसेज यही है कि बच्चे जो है छोटे स्टेज से कारोबार शुरू करें। और इसीलिए मैं यही कहता हूँ कि इन्होंने जो स्टेप उठाया स्टार्टिंग, बहुत अच्छा किया हाजी ने, और इनके बारे में मैंने एक पैगाम दिया कि जो भी काम आप शुरू करो, ख्वाब बड़े देखो, ख्वाब बड़े देखो, काम छोटे से शुरू करो। जो है ना, आपने सीढ़ी पे पहले पाँव में आपने रखना है। बिल्कुल। तो जब आप पहले सीढ़ी पे पाँव रखेंगे तो आप ऊपर जाएंगे। तो हाजी साहब और ये भाई को जो है मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने छोटे से पैमाने से स्टेप शुरू किए हैं। तो वो दिन दूर नहीं है, इंशाल्लाह बहुत करीब होगा जिस दिन जो है ये लोग बड़े ख्वाब उनके पूरा हो जाएंगे। मेहनत करने से रास्ता खुद बहुत खुल जाता है, रास्ता दिखा देते हैं। इसमें कुरान की आयत भी है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान को वही कुछ मिलेगा जो वो चाहेगा, कोशिश करेगा। अच्छा, इससे जरा हम पूछते हैं कि स्टार्टिंग किस चीज से लिया था? जी ले यूचिको करासुली के काले चिंगसत आया चिंग से सबसे पहले यहाँ से चीज शुरू कर सकते हूँ, यानी कि स्टार्टिंग आपने चाय से किया था, चिप से किया था। आज क्या क्या बन रहा है? अभी बना रहे हैं, कारण सूप, चाय, समोसे, रोल।
देखिए जनाब, वही बात हुई ना, स्टार्टिंग इसने चिप से किया, आज इसके ने उन चीज़ों को बढ़ाते हुए 4 एटीएम इनके पास बढ़ गए जनाब। और वो वक्त दूर नहीं, जब आप इसी तरह से चलते रहेंगे तो मेरा दावा है कि आने वाले इसी महीने तक जो है आप यहाँ पे बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं। हो सकते है कि हम इसके होटल में आने के लिए हमें टोकन लेना पड़े, ये भी हो सकता है। क्या ख्याल है? तो ये भी आपको अच्छा, ये जनाब इन दोनों को ज़रा आप देखें, ठीक है, इन बच्चों ने बहुत मेहनत किया है, ठीक है ना, इन्होंने स्टार्टिंग इस चिप से किया था, आज इनके पास बहुत सारे एटीएम हैं। तो हर किसी को यही मैं पैगाम दूंगा, हर किसी को यही कहूँगा कि बस आप शुरू तो करें, काम स्टार्ट तो ले लें। नफ़ा नुकसान इंसान के साथ ज़रूर होते हैं, लेकिन मेहनत करने वाले को कभी नुकसान नहीं होता। तो इसी प्रोग्राम के साथ हमें इजाज़त दीजिए आपके अब्बा जी को, अल्लाह निगहबान। ये लो जनाब, हम स्टार्ट हमारे हाजी साहब से करते हैं जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीने तुझेर जोसे जेरी चीने हाँ या माशाल्लाह जनाब, टेस्ट लेनी जो चीने तो सी बिस्मिल्लाह बेच जो करे रसूल साहब, बिस्मिल्लाह जरा करे सर, ज़रा टेस्ट बताइए जनाब। अच्छा है, रोज़ा है ना? ओ रोज़ा हमारा जाकिर भाई की एक खुसूसियत आप लोगों को बताऊं जी, हमेशा जब भी जुमरात हो, जुमा हो, या रहता है, रोज़ा रखते हैं, यानी कि क़ज़ा नहीं बल्कि सुन्नत। और रोज़ा हमेशा ये हर जुमरात को जो है ना नियत बांध के जुमे और जुमरात दोनों रोज़ा रखते हैं, पूरा साल और साल रखते हैं। अल्लाह ताला आपकी लंबी उम्र हो जाकिर साहब, खुदावंद आलम यारी रिज़्क़ ने बरकत शज़बस। आज अगर आप ये सब कुछ गरीबों के लिए काम कर रहे हैं हमारे साथ, हमें बाजू बन के, हमारे यानी कि हार्ट का जो, दिल का जो आप खून की मानिन है, हमारे जो धड़कन की मानिन अगर आप है, तो ये सब अल्लाह ताला ने आपकी इन चीज़ों की अच्छे होंगे हमें अमाल का हमें वजह है यहाँ दिनिंग बहुत बड़ा गई फर रोल मॉडल जो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। जो शोसी बिस्मिल्लाह, यहाँ रोज़ा में 3 मन يبجس يا يبجس جيب جس بسم الله بس